Q&A. Have patience. We'll give you time to answer all your questions, to raise all your questions, and all our chief guests will be answering your questions. I feel privileged and honored to extend my ebullient welcome to all the guests to this special webinar organized by Chandigarh University in collaboration with Dainik Bhaskar to help you get deep insights about cracking the engineering based entrance exam, especially IIT JEE, as well as tips on stress management and time management by none other than Shri Anand Kumarji. I would also like to give a hearty welcome to all the dignitaries who have spared their valuable time, agreed to help us in this noble mission. Education is brutally competitive arena in India, and competition is a STEM field in this toughest time. The prestigious IITs accepts only 1 in 50 applicants. Even Harvard takes 1 in 19 and Oxford takes 1 in 6. Imagine the competition. With hundreds of thousands of students applying every year, exams like IIJEE are specifically designed to eliminate large number of candidates. And I feel extremely privileged that we have with us our chief guest, Shri Anand Kumarji. A big round of applause for you, sir, who is a renowned Indian mathematics educator, best known for his none other than Super 30 program. Sir, I don't think you need an introduction, and Super 30 program is now a world renowned program. Shri Anand Kumarji has been brought up in Patna, Bihar, where he commenced this Super 30 class. He prepares economically backward students for IIT JEE entrance exams. Sir has spoken at MIT, Harvard about his programs for students for these underprivileged sections of Indian society. Even his life, work portrayed in 2019 film Super 30, where he was played by Hrithik Roshan. For the past many years, there have been repeated success stories again and again. And most of the time, 27 to 28 of the Super 30 has made it to IITs under your guidance, sir. Welcome, sir. We are proud to have educators like you in our country, and indeed, the entire world is proud of you. We are elated to and honored to be in your august company, sir. On behalf of the entire team of Chandigarh University and the team of Dainik Bhaskar, I thank you from the bottom of my heart for accepting this invitation and giving us your valuable time in this webinar today. Not only the audience, we all are equally excited for today's interaction. I'm equally delighted that we have with us the presence of our Honorable Pro Chancellor, the founder, Vice Chancellor of Chandigarh University, Professor Dr. R.S. Babaji, who has been a guiding beacon not only for me, for all of us throughout our journeys. Dr. Baba started his career from PAE Ludhiana and worked as professor in JNDU Amritsar, and then he served as registrar of JNDU from April 1996 to February 2009 for a record 3 terms. One of the youngest person to obtain the PhD at an age of 23 years, life member of Indian Economic Association, also served as president of Indian Economic Association, a position which has been held by renowned economists like former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. Sir has guided a large number of PhD students, noted educationist of our country. Sir, you're welcome, sir. I'm sure many of our attendees have been proactively studying online through these tough times and maintaining a study schedule more stringent than ever before. So Anand sir, if you allow, agar aapki aagya ho, can we show them a glimpse of the other side of the creative life, wherein they get a glimpse of how Chandigarh University students have also achieved great feats in extracurricular activities as well as in patents and research. बहुत बहुत धन्यवाद. That video. Thank you, sir. Thank you for तो allowing us. So हम we will hope that our attendees will take benefit from this video. तो हम लोग शुरू करते जा रहे हैं. यहाँ बहुत आज खुशी की बात है. हमारे दैनिक भास्कर जो हमारे ऑर्गेनाइजर है, उनके तमाम संपादक गण, सहयोगी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मन संचालन कर रहे हमारे युवा साथी, के साथ साथ भारत के भविष्य और हमारे देश के आन बान शान, हमारे प्यारे प्यारे युवा विद्यार्थीगण, बच्चे और बच्चियां,
मुझे आज इस कार्यक्रम में आकर इतनी खुशी मिल रही है कि पूछिए मत। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैं हमेशा नाम सुनते आया था, अखबारों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, और सबसे बड़ी बात है कि उन तमाम बच्चों के जरिए जो चर्चा करते रहते थे कि सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्यों? कि देखिए इस पेंडेमिक में, इस कोरोना काल में, जहां पर पूरा हर जगह क्राइसिस है, वैसे क्राइसिस में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदला और 150 लगभग कंपनियों को यहाँ पर लाया और प्लेसमेंट करके दिखाया, लाखों लाख रुपया का पैकेज देकर कि नहीं, अगर यूनिवर्सिटी अच्छी हो, अगर शिक्षा अच्छी हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये दिखाया है यूनिवर्सिटी ने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के। तो ऐसे मेरे कई विद्यार्थी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आज देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर अपना परचम लहरा रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार समाज नहीं बल्कि देश का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया। इस यूनिवर्सिटी के मंच के द्वारा उन तमाम युवा साथियों से मिलने का मौका दिया गया। इसलिए मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारियों को और साथ साथ दैनिक भास्कर ग्रुप को। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और मैं पिछले कोरोना काल जब से ही शुरू हुआ, लगभग 22 मार्च से ही मैं लगातार इस अखबार के लिए कुछ न कुछ मोटिवेशनल बातें लिखता आया हूँ और साल के अंतिम दिन तक भी सोचा है कि मैं जरूर लिखूंगा ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो। कॉलम लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे भी पूछते थे, लेकिन कॉलम के बाद और प्रश्नों की संख्या बढ़ गई। हम मुझे दिन में करीब 10, 20, 30 ईमेल तक आते थे, सर कैसे तैयारी की जाए, क्या किया जाए, आईआईटी का परीक्षा होने वाली है, जेईई मेन होने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगातार परीक्षाओं का दौर चलने वाला है, सर कैसे तैयारी की जाए। लेकिन भास्कर में कॉलम लिखने के बाद यकीन मानिए लगभग 100 या कभी-कभी उससे भी ज्यादा मेल आते हैं। तो फिर से एक बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि जरूर आपका कुछ अच्छा काम रहा होगा। जरूर आप चाहते हैं कि तमाम उन विद्यार्थियों तक पहुंचे जहां तक अभी तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है। आप स्कॉलरशिप 60 करोड़ 65 करोड़ रुपए तक का बांटते हैं ताकि उन विद्यार्थियों तक भी शिक्षा की रोशनी पहुंचे जहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इस मंच के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, मेरा सौभाग्य है रमेश पोखरियाल साहब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी अभी हाल में भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, काफी यूनिवर्सिटी की तारीफ की है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में हम लोग जैसे मामूली शिक्षक को बुलाकर आपने मुझे अनुग्रहित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों देखिए, चाहे आईआईटी की तैयारी हो या सीबीएसई की तैयारी हो, +2 की तैयारी हो या 10th की तैयारी, तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने मेहनत के साथ, कितने मन से, कितने मजबूत इरादों के साथ आपने पढ़ाई की। तैयारी इस पर निर्भर करती है बच्चों। तैयारी इस पर निर्भर कभी नहीं करती है कि आप कितने बड़े कोचिंग में पढ़े हैं, कितने बड़े मास्टर से पढ़े, कितने बड़े टीचर पढ़ाए हैं, बल्कि आपका पढ़ने का इरादा कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैं आईआईटी की तैयारी करता हूँ, क्या करना चाहिए? ठीक है, आप आईआईटी की तैयारी पर फोकस करिए, लेकिन आपका जीवन का लॉन्ग टर्म का फोकस बहुत बड़ा होना चाहिए। हो सके कि आपकी आईआईटी की तैयारी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आप आईआईटी में चले जाए। हो सके आईआईटी की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन अगर आप नॉलेज का भूख रखेंगे, नॉलेज का प्यास रखेंगे, तब आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में भी जाकर हो सके बेहतर आप रिसर्च कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई कॉलेज बड़ा नहीं होता है, एमआईटी, हार्वर्ड, कोई भी कॉलेज बड़ा नहीं बड़ा होता है, उसमें कैसे शिक्षक है और उसमें कितना जुझारू विद्यार्थी है, इससे कॉलेज बड़ा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए 150 पेटेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास। तो कॉलेज का नाम है, आईआईटी का से तुलना करिए और भी यूनिवर्सिटी से तुलना करिए तो किसी मायने में ये अपनी कोशिशें नहीं छोड़ता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अपना भविष्य
निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात, इस बात का हमेशा आप ख्याल रखेंगे, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोस्तों कभी भी यूनिवर्सिटी बड़ी नहीं होती, कोई शहर बड़ा नहीं होता है, कोई कोचिंग बड़ा नहीं होता है। आपके इरादे कितने बड़े होते हैं, उन इरादों को, उन सपनों को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका प्रयास कितना जबरदस्त है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि आप ध्यान देंगे और इस बात को समझेंगे कि पूरे सिलेबस का कैसे अच्छे से रिवीजन किया जाए। आप पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करें, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना आप एक रूटीन बनाए। बिना रूटीन के, बिना सिस्टमेटिक की गई पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। जो जो आप पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो आप रिवीजन कर लिया, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, उसके बाद आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो है। आईआईटी में या किसी भी इंजीनियरिंग टेस्ट में, जेईई मेन में, एडवांस में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सब प्रॉब्लम बना रहे, जो प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी तकलीफ दे, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करे, उस पर 1 स्टार लगा दे। हो सके कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जिस पर आपको बहुत सोचना पड़े, उस पर 2 स्टार लगा दे। बहुत मशक्कत के बाद कोई प्रॉब्लम बनता है तो उस पर 3 स्टार लगा दे। इस तरह से कैटेगराइज कर, और जब फिर दोबारा रिवीजन करें तो तीनों स्टार वाले ही प्रॉब्लम का रिवीजन करें। ऐसे प्रॉब्लम को रिवीजन करने का कोई अभी जरूरत नहीं है जो आपसे एकदम तुरंत बन गया हो, तुरंत कॉन्सेप्ट पर आधारित हो, थ्योरी पर आधारित हो, तुरंत बन गया हो, उस पर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिर दोबारा क्या करेंगे, जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो 2 स्टार और 3 स्टार वाला सवाल को ही बनाएंगे, और जब फाइनल रिवीजन करेंगे तो सिर्फ 3 स्टार वाले ही सवालों को देखेंगे। इस तरह से मैं सुपर 30 के बच्चों को आईआईटी की तैयारी कराने के लिए कहता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं तो इस पेंडेमिक में, इस कोरोना में बहुत अच्छे कोचिंग में नहीं एडमिट हुआ। कोई बच्चा पूछ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं है, पैसे नहीं थे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं, अभी भी टाइम है। जब जागा तब सवेरा। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, केवल मेहनत का उन्होंने दामन थामा, मेहनत करना सीखा, आज कहां से कहां पहुंच गए। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक ऐसे ही बच्चे की कहानी, अभिषेक की कहानी। अब देख रहे हैं अभिषेक को। अभिषेक गरीब घर का लड़का, पिताजी के पास कोई रोजगार नहीं, कुछ करने के लिए साधन नहीं, बेचारा अभिषेक क्या करता। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जाता था जहां खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, टीचर गायब है, कोई सुविधाएं नहीं है, फिर भी पढ़ता था क्योंकि इसके अंदर एक भूख थी कुछ अच्छा करने की। 10th आते आते अभिषेक टूट चुका था, अपने पिताजी का बड़ा शर्ट पहनने के लिए लाचार था, मजबूर था। पिताजी के पास कोई रोजगार नहीं और माताजी सिर्फ 200 रुपए, उस जमाने में 200 रुपए भी महीना नहीं कमा पाती थी, और ये 20 साल पहले की कहानी है। यह है इस अभिषेक को, आप लोगों ने सुपर 30 की फिल्म देखी होगी, जो काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था, यही था अभिषेक। मेहनत करता गया, परिश्रम करता गया, 10th पास किया और पटना के तमाम कोचिंग सेंटर्स पर एक सपनों को साकार करने के लिए, एक सपनों में रंग भरने के लिए पहुंचा कि सर मुझे पढ़ाइए, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों किसी कोचिंग ने इसको नहीं पढ़ा, सेल्फ स्टडी करता था, कुछ काम करता था, इसी तरह से रात गुजारता था, कभी किसी के सीढ़ियों के नीचे, कहीं होटल के नीचे, और पढ़ता था। हमारी मुलाकात इससे हुई, सुपर 30 की शुरुआत हो रही थी, हमारे पास आ गया, मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत करते 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 एक दिन ऐसा आया कि सबको चौंका दिया, क्योंकि यही अभिषेक जो अच्छे से खाने के लिए दाने दाने पर पहुंचा था, आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया। आईआईटी खड़गपुर पहुंच के वहां भी मेहनत किया, वहां भी मेहनत करते रहा, और फिर उसके बाद आज मॉस्को, लंदन होते होते हुए यही अभिषेक देखिए आज अमेरिका पहुंच गया। आज ये अमेरिका में बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे जॉब पर काम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप में कितनी चाहत है ये बात बहुत लोगों के पास देखते हैं। हमारे फादर एक अच्छी बात बोलते थे कि बेटा पैसे से कोई नहीं पढ़ता है,
अगर पैसे से ही पढ़ना होता तो हर अमीर का बच्चा पढ़ता था। पढ़ता है किससे भाई? मेहनत से। देखिए शशि नारायण कुछ रियल स्टोरी बताते हैं बच्चों, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। शशि नारायण का भाई घर में खाने को नहीं, मजबूरियां, हालातें खराब, लाचार स्थिति में, लेकिन शशि हिम्मत नहीं आ रहा, पढ़ना है, मेहनत करना है। हिंदी मीडियम स्कूल से, गवर्नमेंट के स्कूल से आता था, 4 लाइन ठीक से हिंदी के अलावा इंग्लिश बोलना इसके लिए टफ था, लेकिन नहीं, शशि मेहनत किया, आईआईटी पहुंचा, आईआईटी में भी पढ़ाई कर करके सारे रिकॉर्ड्स को बदल दिया, सारे रिकॉर्ड्स को बदल दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप गूगल कर सकते हैं कितना अच्छा अच्छा इसने रिकॉर्ड बनाया आईआईटी खड़गपुर के। यूरोपियन स्कॉलरशिप, साइंस स्कॉलरशिप, पूरी दुनिया में मशहूर, पूरी दुनिया से इसमें लोग आवेदन करते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए प्रयास करते हैं। शशि भी किया मास्टर डिग्री के लिए। दोस्तों उस दिन मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था, पता है? शशि पूरी पूरी दुनिया में रैंक 1 ला, और आज यही शशि गूगल में बतौर साइंटिस्ट काम कर रहा है। देखिए, और एक ब्रिटिश लेडी से शादी कर लिया। जो बच्चा ठीक से इंग्लिश बोल नहीं पाता था 4 लाइन, जो बच्चा ठीक से खा पी नहीं पाता था, अगर उसमें चाहत है तो कहां पहुंच गया आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही आप देख सकते हो कहां पहुंच गया, गूगल में पहुंच गया, गूगल में साइंटिस्ट के तौर पर काम करा और ब्रिटिश लेडी से शादी करता। तो जहां चाह है वहीं राह, इस बात को याद रखिएगा। तो तैयारी कैसे की जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए, अब क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछेंगे तो हम बताएंगे। ज्यादातर लोगों को पता रहता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो आपके पास प्लान है, जो रूटीन है, उसको कितना जल्दी आप लागू करें। बगैर प्लान के, बगैर योजना के कोई अगर आईआईटी की तैयारी करे, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहे या एक पत्रकार बनना चाहे, कुछ भी जर्नलिस्ट बनना चाहे, नहीं बनेगा। अभी सबसे अच्छा दिन, हम लोग हमेशा सपने देखते हैं कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अच्छा, दुर्गा पूजा के बाद करेंगे, दीपावली के बाद करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा नई जिंदगी की शुरुआत करने का वक्त चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जा रहा है। पहला साल, पहला साल का पहला दिन, साल का पहला दिन। मेरे कहने का मतलब है 5 जनवरी से हम लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अभी बचे हुए 30 तारीख, 31 तारीख, 2 दिन हमारे पास है। पूरा सोचे, पूरा मंथन करे, चिंतन करे और अपनी योजना बनाए, और अपनी योजनाओं को अंजाम देने का वक्त आ जाएगा 1 तारीख। यही 1 तारीख को देखिए, निधि झा, निधि झा के पिताजी बनारस के गलियों में ऑटो चलाते थे, कोई उनके पास सुविधाएं नहीं, साधन नहीं। झोपड़पट्टी में रहने वाली निधि को जब पता चला सुपर 30 के बारे में, तो हमारे पास आई, बातचीत की, मैंने अपने उससे स्टूडेंट बना लिया, मेहनत करती गई, मेहनत करती गई, और एक दिन आईआईटी हो गया। बच्चों आईआईटी हो गया, ये एक छोटी कहानी थी कि निधि का आईआईटी हो गया। बड़ी कहानी थी कि इस पर फ्रेंच डायरेक्टर एक फिल्म बना, बड़ी फिल्म बना रहे थे फ्रेंच में, पास्कल पिकासो। उन्हें पता चला कि दुनिया के 4 ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करना है जिसमें मेधा है, टैलेंट है, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं थी, लेकिन सुविधा का लाभ उठा के आज उन बच्चों ने ऊंचाइयों को छुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि निधि इसमें एक थी, उसका सिलेक्शन हुआ। निधि पर फिल्म बनने लगी। आप देखिए, फिल्म बनाने लोग आए, फ्रांस से आए, बहुत बड़ा सेट लगा के आए, और जब फिल्म बन गई तो सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? जब निधि को, मुझे, मेरे भाई प्रमोद को, जो मेरा हमेशा साथ देता है, निधि के मम्मी पापा, तमाम लोगों को पेरिस प्रीमियर शो पे बुलाया गया। हम लोग पहुंचे वहां, एक दिन पहले पहुंच गए थे, और पेरिस के गलियों में अचानक देखा कि कई पोस्टर लगे हुए, और उन पोस्टर पर निधि की तस्वीर देखी। आप भी देख सकते हैं। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि एक रिक्शा चालक का, ऑटो चालक का, एक मजदूरी करने वाले का, एक अखबार बांटने वाले का, एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा और बच्ची जब इतिहास लिख सकता है, तो आपके पास तो तमाम सुविधाएं हैं। आपके पास कुवत है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, आपके पास कुवत है एनआईटी में पढ़ने का, आपके पास कुवत है आईआईटी में पढ़ने का। आप तो कुछ भी इतिहास को बदल दे सकते हैं। आपके लिए, आप जैसे जुझारू स्टूडेंट जो कुछ कर जाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके लिए पूरा दरवाजा खोले हुए आपको गले लगाने के लिए
बाहों को पसारे हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाँ, जरूरत इस बात की है कि गले लगाने के समय थोड़ा बचे और मास्क लगाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं स्कॉलरशिप देने के लिए, ना सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बहुत लोग दुनिया में है। अगर आप में चाहत है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो रास्तों की कमी नहीं है। दिक्कतें आती है बच्चों, मुश्किलें आती है। मैं भी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन 510 विद्यार्थियों को अभी तक पढ़ाया, और 510 विद्यार्थियों में मैं बता रहा हूं कि 510 विद्यार्थियों में 440 विद्यार्थी आईआईटी में चले गए। तो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारा बच्चा बोलता है कि नहीं सर, एक्सक्यूज देते हैं, नहीं सर हमारे यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है, कोरोना हो गया। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, हो सके फी लगे, फी कहाँ से देंगे। कोई बोलता है आईआईटी नहीं कर पाएंगे, कोई बोले मेरे मामा जी बड़ा डिस्टर्ब कर दे, कोई बोले पड़ोसी के लड़ाई हो गया। बहुत सारी बातें, उन तमाम चीजों को आप हटा दीजिए। मुश्किलों किसके साथ नहीं होती है, किसको संघर्ष नहीं करना पड़ता। देखिए, जब सुपर 30 का नाम हुआ, फिल्म रिलीज होने के पहले भी, अब फिल्म रिलीज होने के बाद भी, अब फिल्म रिलीज होते के समय भी, जब सुपर 30 का नाम हुआ, तो देखिए कोचिंग माफिया पटना में भरे हुए, तरह तरह के कोचिंग माफिया भरे हुए हैं, और उन्होंने धमकी दिलवाया कि भाई ये कोचिंग बंद करो सुपर 30, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ जलने वाले लोग जो नहीं चाहते कि गरीब गुरबा लोग पढ़ पाए, उन्होंने क्या किया कि मुझ पर हमला करवाया। फिल्म में तो आपने एक हमला दिखाया है, एक छोटा सा, छोटी सी घटना थी, कई ऐसे हमला हुए। देखिए, सबसे डेंजरस हमला हुआ था जिसमें हमारा, आप देख सकते हैं, साफ नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना, पूरे पेट में यहां से लेके यहां तक चाकू दिख के मार दिया गया, घुसेड़ दिया गया। मुन्ना बेहाल था, बेहोश हो चुका था, जमीन पर गिरा हुआ था। सब लोग बोल रहे थे अरे भाई अब नहीं बचेगा। हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज ले गए, पटना मेडिकल कॉलेज पर उसके स्ट्रेचर पर लिटाया गया। डॉक्टर बोले बचाने का इसको तरीका कोई नहीं, बहुत कम उम्मीद है, आप ऐसा करिए। तो सब बोलने लगे यार मर जाएगा एक जवान लड़का, तुम फंस जाओगे, सारे इसके परिवार क्या करेंगे, तुमको कितना आत्मग्लानि होगी, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, तुमको तो चोट लगती है, तुमको तो धक्के लगते हैं, तुम्हारे भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ाया जाता है, अब तो तुम्हारे जो नॉन टीचिंग वॉलेंटियर्स है उस पर भी ये सब हमला हो रहा है, कैसे तुम कुछ कर पाओ। मुश्किलों मेरे पास नहीं थी, मुश्किलें मेरे पास कम नहीं थी दोस्तों। फिर भी हमारे कुछ बच्चे आए, जब डॉक्टर बोले कि भाई मुझे ब्लड चाहिए, इसको तुरंत ऑपरेट करता, अगर बचाना है तो तुरंत ऑपरेट करता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे 300 बच्चों ने हाथ बढ़ाया, पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करो, पहले मेरा ग्रुप टेस्ट। सब आमादा थे, मैं पहले ब्लड दूंगा, मैं पहले ब्लड। अब बताइए, उस समय मुझे लगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत में ये मुहिम को नहीं छोड़ता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बच्चा फिर ठीक हो गया और फिर चलने लगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है, दोस्तों तकलीफें आती हैं, कभी कोरोना के रूप में, कभी पारिवारिक कलह के रूप में, कभी आर्थिक संकट के रूप में। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग अपने मिशन से भटक जाए। हम लोग अपना मिशन से कैसे लड़े, जब दोबारा तिबारा जब हमले हुए तब हमने आवाज उठाई, हमारे बच्चों ने, क्यों आई भाई हमला होता है। तब बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कमांडो दे दिया कि नहीं भाई आनंद कुमार की सुरक्षा के लिए रहेगा। उसके बाद कुछ हमला नहीं हुआ, बहुत सारे हमले उसके बाद भी हुए, भाई पर हमला हुआ, परिवार पर हुआ। तो ये चलते रहता है। और ऐसा मत कहिए कि बिना पैसे के कैसे होगा, अरे आपको मदद मिलेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले ना कि बाहों फैलाए तैयार है कि भाई मैं आपका स्वागत करूं। मुझे डोनेशन के लिए देखिए कितना ऑफर आया, बड़े बड़े लोगों ने किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने, मुकेश अंबानी साहब देखिए, आनंद महिंद्रा साहब देखिए, कौन ऐसे व्यक्ति नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है। हरपाल सिंह जी पंजाब से, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा पैसे ले लो, पैसे ले लो। क्योंकि दोस्तों मैंने हाथ जोड़ा कि पैसा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। पैसा तो हम लोग कुछ शाम को ट्यूशन पढ़ा के, कहीं भाषण देके, लेक्चर देके कमा लेते हैं, जिससे हम लोग 300 बच्चों का भोजन और परिवार का खाना खर्चा चल जाता है। चाहिए हौसला, चाहिए हिम्मत। बच्चों, तो ही मैं बता रहा हूँ कि आपको भी हिम्मत हौसला चाहिए। कितना भी कठिन समय हुआ, देखिए हमारे भाई पर फिल्म रिलीज के समय क्या हुआ।
आज वह ट्रक पैर पर चढ़ा दिया, 3 महीने तक ये सुपर 30 के बच्चे दिख रहे हैं, उनका साथ दिया। तो ऐसा मत सोचिए, मुश्किलें आती हैं आपके साथ। और हमारे समय में तो कोई सुविधा भी नहीं थी। आज देखिए हमारे समय में क्या था भाई, कि अब इस हाल में मेरा जन्म हुआ, अच्छे सा मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई का, कैम्ब्रिज में मेरा एडमिशन भी हुआ, पैसा नहीं था, नहीं जा पाए, सडन डेथ हो गया पिताजी का ड्यू टू टेंशन कि भाई हम बच्चे स्ट्रेस था, बच्चे को मैं कैम्ब्रिज नहीं भेज पा रहा हूँ। कोई नहीं मदद के लिए आए। आज तो ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बात तुरंत स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है और लोगों को पता चल जाता है। उस समय कोई नहीं मदद पे आया। देखिए अखबारों में निकलने के बाद भी कोई मदद पे नहीं आया। बच्चों अब हमने, और ये आपने फिल्म में देखा होगा कि हम लोग पापड़ बेचे, माँ इसी हालात में पापड़ बनाती थी, हम लोग घूम घूम कर बेचते थे, लेकिन कभी भी हमने समझौता नहीं किया। दोस्तों आज समय आ गया है आपका, आपको समझौता नहीं करना है। आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपको वकालत करना है, आपको वकालत करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं डॉक्टर बने तो डॉक्टर बने, अगर आप आर्ट्स पढ़ के कुछ फिलोसफर बनना चाहते हैं तो फिलोसफर बने। कभी भी किसी पर आप मत आधारित रहिए, मत एक्सक्यूज दीजिए। अरे देखिए सुपर 30 कितना छोटा सेटअप में चलता है। हमारी माता जी खाना बना रही है, आज भी जैसा फिल्म में देखते हुए वैसे सुपर 30 चलता है। तो कहने का मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई चीज अचानक आपको बड़ी मिल जाएगी। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको भटकाव से भी बचना पड़ेगा। देखिए भटकाव है, फेसबुक का भटकाव, मोबाइल का भटकाव, दोस्तों का भटकाव, कोई यूनिवर्सिटी, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो एक अलग यूनिवर्सिटी का भटकाव। वो तो आपको फोकस करना होगा कि वेयर आई हैव टू, कहाँ मुझे जाना है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए हमारे जीवन में जहां भी जाते हैं तो बच्चे कितना भीड़ जुटा देते हैं। सुपर 30 फिल्म के रिलीज के पहले की तस्वीरें देखिए कितनी भीड़ जुट जाती है। बावजूद इसके कई लोगों ने मुझे बोला, कई लीडर्स बोले, पॉलिटिशियन, अरे यार चुनाव लड़ जाओ, अच्छा मौका है, लहर भी है, भैया चढ़ाओ पार हो जाओ, मंत्री बन जाओगे, अगर सांसद बन गए तो फिर मंत्री भी बन जाओगे। बन भी जाता, जितना मेरा समर्थन है, जितना लोग मुझे प्यार करते हैं, आप लोगों से सम्मान मिलता है, मैं बन भी जाता। लेकिन बच्चों फिर आपसे बात करने इस मंच पर भास्कर मुझे नहीं बुलाता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी नहीं बुला पाता। इसलिए मैं जहां हूं वहां से भटकू नहीं, डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसका ध्यान रखिए। तो जब आप तैयारी करते हैं किसी भी चीज की, पढ़ाई की, लिखाई की, कुछ आगे बढ़ने की, तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। डिस्ट्रैक्शन था कि पॉलिटिक्स में आ जाओ, क्यों? क्योंकि टीचर है, टीचर का धर्म क्या है? अच्छे से पढ़ना, पढ़ पढ़ के पढ़ाना, नई चीजों को सीखना, बच्चों को सिखाना, उनको उठाना, जहां जिस लेवल पर उस लेवल से उस ऊंचाई तक उठाना, ही ना काम है शिक्षक का बच्चों। इसलिए मैंने शिक्षक का धर्म निभाया। अब जरूरत इस बात की है कि आप खुद स्टूडेंट का धर्म निभाइए, पढ़िए लिखिए, बड़ा करिए, अच्छा करिए। आपके भी जीवन में खुशियां आएंगी, ऐसी बात नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आई, ऐसा कभी नहीं समझिए, बहुत खुशियां आई। आप पढ़िएगा, देखिए अब दिखा रहे अच्छे रिजल्ट हुए, कभी 18, कभी 20, कई बार तो 30 में 30 बच्चे आईआईटी क्वालिफाई कर गए, बहुत अवार्ड मिला, मान सम्मान मिला। आप देख रहे बहुत खुशियां हमारे जीवन में भी आई। आप देखिए बहुत बड़े एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिला, जेम्स कैमरॉन। केबीसी में अभी भी आपने देखा होगा, इधर केबीसी में 25 लाख जीता था, आजकल कई बार 3-4 बार तो आ गया, अभी और भी जनवरी में भी आने वाला हूँ एक्सपर्ट बन के, तो बहुत मौका मिला। अमिताभ बच्चन का अक्सर अभिसार माननीय अमिताभ बच्चन जी का मिलता है, ऋतिक रोशन जी ने फिल्म बनाया, बहुत सारी चीजें हुई। तो खुशियां मिलेगी। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है, कुछ नया रिसर्च करेंगे ना, आपका नाम से पेटेंट होगा, दुनिया याद रखेगी। मैं किस दिन के इंतजार में बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और टीवी पर देखता रहूंगा, एक बार एक बच्चा आएगा, पता चलेगा कि भाई इस बच्चे को तो नोबेल प्राइज मिल गया, बहुत अच्छा पेटेंट कराया, बहुत अच्छा रिसर्च किया। मैं पूछूंगा भाई कहाँ किया? अपने जो अगल बगल मेरे बच्चे बैठे रहेंगे या मेरे कोई स्टूडेंट, बूढ़ा हो जाऊंगा, ये बूढ़ी पत्नी कौन पता नहीं, देखे भाई टीवी पर आएगा, टीवी पर बच्चा आएगा, बताएगा कि भाई मैं, टीवी पर पूछेगा जर्नलिस्ट, बताइए माइक लगा के, सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया था कि आपको बड़ा काम करना है, रिसर्च करना है? उस वक्त आया था जब आनंद सर बोले। अब
जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम कराया था कोरोना काल में, तब मुझे आया था, असर बताए थे, उस दिन मैंने ठाना और आज मैं ये प्राइज जीता हूँ। उसी दिन का इंतजार है। और तब दैनिक भास्कर का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, मेरे का इस कार्यक्रम करने का सार्थकता, दिल से बोल रहा हूँ बच्चों। ऐसा नहीं कि अपना फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, एक मास्टर हूँ तो पढ़ाने के लिए। मेहनत करिए, सपने सच होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है। आप सपने प्लान बना के केवल सपने देखने से नहीं होता है। आपका जो पास बीत गया वो पास था, आप में कमजोरियां होंगी, दिक्कतें होंगी, मुश्किलें थी, वो पास हो गया। जो अभी वर्तमान है उसको अच्छे से जिए, इसी पर फ्यूचर डिपेंड करता है। आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे हैं। आज जितना फिजिक्स जानते हैं, जितना मैथ जानते हैं, केमिस्ट्री जाने, उससे आप हर दिन कितना आगे बढ़ रहे हैं। रात को समीक्षा करिए, हर रात को अगर आपको पता चले कि कुछ कुछ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो समझिए आपका आने वाला भविष्य सुनहला है। मेरा मानना है कि दोस्तों, आप नए साल पर नई जिंदगी की शुरुआत करिएगा, खुले आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ान भरिएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं यूनिवर्सिटी को देना चाहता हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और अच्छा लगेगा अगर कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो जाए कुछ बच्चों की उत्सुकता को मैं बता सकूं। Sir, it has been a delight listening to your words full of wisdom. बहुत बहुत अच्छा लगा आनंद जी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कि कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी इस बात पर निर्भर है कि आप उसी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इस बात पर नहीं कि आप किस संस्थान में पढ़ते हैं, वो कितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सुपर 30 छात्रों को पढ़ाने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्रिक्स को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से 2 तथा 3 स्टार ट्रिक क्वेश्चंस के लिए मुझे यकीन है अभिषेक और निधि जैसे छात्रों की कहानियां एक मिसाल बनेगी, उनके सपनों को हासिल करने के लिए उनकी ललक प्रेरणादायक बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सेशन को जारी रखेंगे। आनंद जी, आपसे एक परमिशन चाहते हैं कि हम अपने यूनिवर्सिटी का एक वीडियो बच्चों को दिखा सकें। जरूर जरूर जरूर, हम भी देखें, हम भी देख के खुश होंगे, जरूर देखें। Every JEE aspirant has a dream to pursue his engineering from IITs and NITs. I'm being from an IIT background. I also had a dream to be an IIT, but I didn't. And then I chose Chandigarh University because of powerful leadership and goal-oriented vision. And this helped me to crack a job. And today I'm placed at Nutanix at a package of 18 lakhs per annum, whereas my IT friends are still searching for a job.
This year, the National Level Common Entrance Test was launched by the Honorable Education Minister of India, Ramesh Pokhriyal Nishank ji. CUCET is a national level online test mandatory for admissions into various programs at Chandigarh University. The early applicants stand a chance to avail maximum scholarship. Thank you, sir, for allowing us to show our little work to the audience. So now I invite our Honorable Pro Chancellor, sir, Dr. R.S. Babaji. Sir, you have been a guiding beacon for all of us throughout our journeys. So I request your good self to please apprise the chief guest and the students how Chandigarh University is a leading Indian institution offering students a unique amalgamation of professional and academic excellence. So please. थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है आज श्री अनंत कुमार जी को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से धन्यवाद करते हुए और उनका अभिनंदन करते हुए। अनंत कुमार जी, ग्रीटिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। मैंने आपको सुना और मुझे विश्वास है कि आप जैसे व्यक्ति ही वक्त की धारा बदल देते हैं और आप लोगों ने केवल कुछ बच्चों का जीवन नहीं बदला है बल्कि उनके लिए सभी कुछ बदल दिया। और आपने जो बातें कही हैं अभी बच्चों को जो आपने शिक्षा दी है, बच्चों को जो सलाह दी है, वो सही मानों में जीवन मूल्यों पे आधारित है और उनको आपने बताया है कि जीवन में कैसे सफल हुआ जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे ही मूल्यों की बात करते हैं। तो जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मूल्य हमारे अनुशासन है। तो आप भी जैसे कह रहे थे कि हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, हमें ये निश्चित करना है कि हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। तो यही बात हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ करते हैं और बच्चों को ये समझाते हैं कि जीवन में ये जो समय होता है, आपके पास आने के बाद वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि आप उनको जो शिक्षा, जो मूल्य देके भेजते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई अगर आपने जीवन में कुछ करना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का अर्थ भी वही है कि आपको पूरी तरह से मन से और अपने दिमाग से पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित करना है, अपनी शिक्षा को, जो आपका उद्देश्य है उसको। तो हम ड्रीम कैरियर्स की बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो चीजें जो आप सिखा रहे हैं, कुछ हद तक हम भी बच्चों में वही चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये विश्वास है कि बच्चों में बहुत प्रतिभा होती है, बच्चों में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन होता यह है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। हम बच्चों को उस तरह का मौका नहीं देते, उस तरह की सुविधाएं नहीं देते हैं ताकि वो बच्चा जो उसके गुण है, जो उसकी पूरी की पूरी श्रद्धा है, जो उसके उसमें जो आई वुड से इज टोटल एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज हैं, उनको हम होन नहीं कर पाते, हम उनको पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं कर पाते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे आपने अभी बताया, हमारे बच्चों ने और जो अभी आने वाले वो बच्चे जो IITs में या हमारी यूनिवर्सिटी में या कई जगह पे जाएंगे, वो आपसे ये सब मूल्य और ये सब जो शिक्षाएं हैं वो लेके साथ में चले। तो मेरी ये सलाह होगी सभी बच्चों को कि जो अनंत जी ने अभी बताया है आप लोगों को, ये जीवन के सिद्धांत होने चाहिए आपके। और अगर आप ये बात मान के चलोगे, इसका पालन करोगे, तो कोई कारण नहीं है कि आप जीवन में बहुत सफल ना हो। मुझे एक बात विशेष तौर पे करनी है आपसे, जो उन्होंने कही उसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका जो अपना समय है आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने समय को परिभाषित करूंगा, अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आप बेटा अभी भी आप घर में बैठ के चाहे पढ़ रहे हो, तो आप स्कूल का समय होता है जब आपको आपके अध्यापक प्राध्यापक कुछ पढ़ाते हैं, तो वो 6 घंटे होगा, 5 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, जो भी होगा। लेकिन सबके जीवन में 24 घंटे का समय रहता है, तो उसमें आप 8 घंटे सोने के निकाल लें,
2 घंटे सुबह के निकाल लें, वो समय जो आप इस्तेमाल करेंगे, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, जो भी आपको करना है, तो उसके बाद आप 6 घंटे मान लो स्कूल के भी निकाल दें, तो भी आपके पास लगभग 10 घंटे बचते हैं, 8 घंटे बचते हैं। तो ये 8 घंटे निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में सफल होंगे कि नहीं। और अनंत कुमार जी ने जो आपको कहा है वो ये है कि भाई आप लंच और डिनर के लिए आप 2 घंटे और निकालो, लेकिन जो बाकी 6 घंटे हैं वो कैसे आप उसको प्रयोग करोगे, उसमें कैसे अपने आप को तैयार करोगे, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, इस बात पे निर्भर होगा कि आप जीवन में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। ये कोई बात ही नहीं है कि आपको IIT में जाना है या कहीं भी जाना है, आपको चाहे हार्वर्ड में जाना है, चाहे आपको कैम्ब्रिज में जाना है, कहीं भी जाना है, वो 6 घंटे निर्धारित करेंगे आपका जीवन का पूरा जो आपका सफर है, जो आपकी सफलता है, वो उन 6 घंटों पे निर्भर करेगी। और मैं पूरी तरह से सहमत हूं अनंत कुमार जी से कि आपको उसका अलग से एक समय सारणी बनानी पड़ेगी, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जो आपका 6 घंटे हैं आपके अपने, वो आपके अपने हैं। अब आप पे निर्भर करेगा, वो आप उसको मोबाइल पे इस्तेमाल करना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो, इधर उधर गपशप करना चाहते हो, या अपने जीवन को बनाना चाहते हो। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप उन 6 घंटों को बेटा पूरे तरह से अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें, और जो भी आपके जीवन का उद्देश्य आपने बनाया है, जो आपका सपना है, जो आपके माता पिता का सपना है, जो आपके माता पिता की आपसे आशाएं हैं, वो सभी पूरी की जा सकती हैं। केवल शर्त एक ही है कि आपको जो होता है, एक होता है जो अनुशासन स्कूल की तरफ से होगा, एक अनुशासन होगा माता पिता की तरफ से, एक मैं उसको बोलता हूँ स्व अनुशासन, जिसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन निर्धारित करेगा कि आप जीवन में कितने सफल रहते हैं। तो मैं जहाँ पे अनंत कुमार जी की प्रशंसा करनी चाहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी प्रशंसा करने के लिए, वही बेटा मैं आप सब लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने आपको सलाह दी है, जो शिक्षाएं दी हैं, उनका पालन करिए, आपके समय का सदुपयोग करें, और अपने ये 6 घंटे जो स्कूल और बाकी चीजों के अलावा हैं, जो आपका अपना समय है, उसको अच्छे से उसका टाइम टेबल बनाएं, उसकी टाइम मैनेजमेंट करें, और उसमें वो सब करें जो आपको जीवन में सफल बनाए, और आपके जो सपनों की रोजगार है या सपनों का करियर है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसको आप पा सकें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके माता पिता ने भी इसमें शामिल हुए हैं और अध्यापक शामिल हुए हैं। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाई गई है। मैं सिर्फ 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है, ये टेक्नोलॉजी पे आधारित विश्वविद्यालय है। ये नए जमाने का न्यू एज विश्वविद्यालय है, और सबसे बड़ी बात कि ये विद्यार्थी केंद्रित विश्वविद्यालय है। वी कॉल इट स्टूडेंट सेंट्रिक। तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं, हम जो भी करते हैं इस विश्वविद्यालय में, सिर्फ वही करते हैं जो हमारे बच्चों के हित में होता है और जो बच्चे चाहते हैं। तो अगर मैं उसको शॉर्ट में कहूँ तो हम बच्चों की एस्पिरेशंस को, उनकी आशाओं को, उनकी इच्छाओं को, जो शिक्षा से संबंधित है, जो उनके करियर से संबंधित है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपके कुछ अगर प्रश्न होंगे, आपकी कुछ आशाएं होंगी, आप हमसे पूछिए, और हमारी पूरे की पूरी टीम है यहाँ पे जो आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर बाद में भी देती रहेगी। लेकिन अभी अगर अनंत कुमार जी से आपको कुछ पूछना है या मेरे से कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for showering your words of wisdom, and your motivation have always paved way for all of us, all employees and all students. Thank you. So, आनंद जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम Q&A जरूर कर सकते हैं? आनंद सर, आप अलाउ करें तो हम क्वेश्चन एंड आंसर। राइट सर, बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं,
मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा क्वेश्चंस ले पाऊं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। जरूर एक जरूर बड़ा जरूर common पूछिए question आता है पूछिए। सर कि हाउ टू चूज अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कैसे चूज करें एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन केस हमारा जेईई एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है। बहुत अच्छा सवाल है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिलेक्ट करते वक्त आप देखिए कि कहाँ पढ़ाई अच्छी है। मेरा मापदंड है कि वहां के बच्चों से बातचीत करना बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा, आप वहां के बच्चों से, अगल बगल के लोगों से पता करिए कि उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि फाइनली जो जीता वही सिकंदर। वहां के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितना अच्छा प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के लिए 150 कंपनी आई इस कोरोना में भी चंडीगढ़ का, तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट है, जहां रोजगार लोगों का जा रहा है, वहां नौकरी मिल रही। तो कहाँ पढ़ाई अच्छी है, कहां पर प्लेसमेंट अच्छा है, ये दो मापदंड को अगर आप मान के स्टैंडर्ड आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सर, आपके लिए भी क्वेश्चंस बच्चे पोस्ट कर रहे हैं Q&A में। जी हमने अपनी वीडियो में भी दिखाया यूनिवर्सिटी NAC A+ है, तो कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि इस NAC A+ का उनके लिए क्या बेनिफिट है। बच्चों को NAC A+ का बेनिफिट क्या मिलेगा, यूनिवर्सिटी ने तो एक एक्रेडिटेशन लिया, अगर आप इस पे कुछ ज्ञान डाल सकें। ये जी बहुत जी अच्छा है। जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है A+ है, तो बहुत उससे अच्छा कोई चीज नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी है, कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, ओवरऑल उसका रिसर्च कैसा है, पेटेंट कितना हो रहा है, कितनी सैलरी टीचर को है, कितने बच्चे का फीडबैक अच्छा है, सब मिलाकर इस एक मापदंड तैयार किया जाता है और सबसे बढ़िया A+ मिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये एक चिन्ह है, निशानी है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो बाबा सर प्लीज, अगर आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैं बता दूं कि NAC A+ का अर्थ क्या है। एक्चुअली नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ये भारत सरकार का एक अदारा है जो बनाया गया है विश्वविद्यालयों को और कॉलेजेस को उनके जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए, और फिर उनके तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद वो उसको ग्रेडिंग करते हैं। बेटा, जैसे आप लोगों को ग्रेड मिलते हैं आपके जो आप परीक्षा में अपना कारगुजारी करते हैं, जो परीक्षा में बढ़िया काम करता है उसको A+ ग्रेड मिलेगा, फिर A मिलेगा, फिर B मिलेगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह से NAC जो है वो सारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को अलग अलग से ग्रेडिंग करती है। तो A++ जो है वो सबसे बड़ा ग्रेड है जो मिल सकता है किसी को। उसके बाद A+ है, फिर A है, फिर B++ है, वगैरह। तो बच्चों के लिए जब आपको हम एक आपका सर्टिफिकेट देंगे, आपको डिग्री देंगे, तो उसके ऊपर लिखा रहेगा कि ये विश्वविद्यालय A+ विश्वविद्यालय है। तो इसका अर्थ क्या है कि मान लो दो बच्चों का ग्रेड पॉइंट सेम है, लेकिन जो A++ से आएगा या A+ से आएगा उसको B वाले से या A वाले से बेहतर समझा जाएगा। दूसरी बात, ये जो ग्रेडिंग होती है ये NAC की वेबसाइट पे पड़ी है, और NAC जो है इसका पूरे विश्व के देशों के साथ जो उन पे क्वालिटी एश्योरेंस उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ टाई अप है, तो एक दूसरे के साथ रिकॉग्निशन होती है। जो हमारा A+ ग्रेड है, जब पूरे विश्व में इसकी मान्यता है, तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई करना चाहें, आप कहीं नौकरी करना चाहें, तो इस A+ की वैल्यू किसी भी और ग्रेड से A से B+ से अधिक रहेगी। इवन जो इंडस्ट्री है, कारपोरेट है, उद्योग है, वहां पे भी नौकरी लेने के लिए आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी अगर आप A+ यूनिवर्सिटी से आते हैं एज कंपेयर टू अगर आप B से आते हैं या B+ से आते हैं या A से आते हैं। तो A+ जो है ये जैसे आपको यूनिवर्सिटी का नाम आपके साथ सारी उम्र रहेगा, इसी तरह से जो डिग्री आप प्राप्त करते हैं उसमें जो आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उस पे भी A+ हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये आपकी एक अतिरिक्त आपकी शक्ति बन जाएगी। सो ये आपकी एक स्ट्रेंथ होगी कि आप A+ विश्वविद्यालय से डिग्री कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इल्यूमिनेटिंग आंसर। आनंद जी, बच्चे एक सवाल काफी बार पूछ रहे हैं कि
जो आपका सुपर 30 बैच है, इनके छात्रों से ऐसे कौन से आप कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बताते हैं जिससे आपका सक्सेस रेट इतना अच्छा है कि 28 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल एवरी ईयर? तो कुछ आप कोई एक बच्चों को शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जितने भी आज हमें बच्चे सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे प्लीज? देखिए, हम ये लगभग आखिरी सवाल ले रहे हैं और इसी सवाल के माध्यम से सारे जवाबों को देने का प्रयास करें। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो, आईआईटी की तैयारी हो या फुटबॉल मैच जीतने की बात हो, 4 बातों का आप ख्याल रखें। पहली बात है भाई, पहली बात है कि जो भी आप काम करें ना उसके लिए प्रबल प्रयास हो। आईआईटी करता है तो करता है, हमको अच्छा कुश्ती में प्रदर्शन करना है तो करता है। प्रयास, सोचते जागते उठते हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो आईआईटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो फार्मूला। आप सुबह जैसे ही नींद खुले दिमाग में एकदम अचानक जो लक्ष्य है वो आना चाहिए और रात में सोते सोते भी वो लक्ष्य पर ही बातें करना। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात प्रबल प्यास ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती उस तरह से। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सकारात्मक पॉजिटिव। नहीं, मैं जरूर करूंगी, मुझे सफलता जरूर मिलेगा, इस तरह से सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जो कुछ भी हो मैं करूंगा, इससे मैं करूंगी, इस भाव से लगी। बहुत बार लोग निराश हो जाते हैं, जीवन से हताश हो जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ही खत्म हो जाती है, वहीं पर हार हो जाती है। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई कि शायद ये काम मुझसे नहीं भी क्या हो सकेगा, समझिए आपकी हार। आप कभी मत सोचे कि आपकी हार होगी, हमेशा ये सोचे कि आप जीतने वाले हैं, चाहे जो भी हो आप जीत रहे हैं, जीत आपकी ही होगी और 100% होगी। ऐसी बात अगर आप सोच के चले तो देखिए सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा। तीसरी बात की हमेशा आप सोचिए कि मुझे अथक परिश्रम करना है। पहली बात हो गई, क्या बताए थे, फिर से रिपीट करें, प्रबल प्रयास, सकारात्मक सोच। तीसरी बात है, वो बात है अथक प्रयास। हमारे सुपर 30 के बच्चे, पूछा ना आपने क्यों सफलता प्राप्त करते, क्योंकि हम सुबह जाते हैं, मान लीजिए आज संडे है, छुट्टी है, तो सुबह जाइए तब भी पढ़ते मिलेंगे, रात में भी पढ़ते मिलेंगे, शाम को भी पढ़ते मिलेंगे, कब सोएंगे पता नहीं। तो पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, बिना थके बिना रुके, जब मौका मिले तब पढ़ाई करेंगे। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, मान लिया जाए आप नहा रहे हैं, खाना खा रहे हो, उस समय भी आप काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में आपके मस्तिष्क में बात चल रही है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो याद रखिएगा पढ़ाई खेल कूद जिस भी फील्ड में है आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। मेहनत करते रहिए, थक जाने पर लगे कि अब पढ़ाई छोड़ दे तो 1 घंटा और पढ़ा। और चौथी और सबसे बड़ी बात होती है सीम धैर्य। हम लोग इस नए साल के अवसर पर रूटीन बनाएंगे, रूटीन को बनाने के बाद 1 जनवरी को सोचेंगे अच्छा छोड़ो आज 1 जनवरी सेलिब्रेट करते, 2 तारीख से 2 तारीख को लगेंगे कुछ फायदा नहीं, 3 तारीख को पढ़ेंगे कुछ फायदा नहीं, कोई उतना प्रोग्रेस नहीं होता है। 4 तारीख को लगे कि नहीं बेकार, अच्छा 1 दिन आज आराम कर लेते हैं, 2 दिन आराम छूट गई, छूटनी नहीं चाहिए। सीम ग्रेट पेशेंस, बनाते रहिए। बहुत बार बच्चों को मैं ओलंपियाड का सवाल देता हूँ, सुपर 30 के बच्चों का कहता हूँ बना के लाओ, बच्चे बोलते हैं सर नहीं बना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर मैं पूछता हूँ कि अब बना देखे तुमसे कुछ हुआ, नहीं सर नहीं बनता है। चौथा पांचवा दिन थक जाते, बोलते अब सर कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं हार गया लग रहा है, मुझे माफ कर दे सर। तो मैं बोलता हूँ क्यों भाई तुम इतने हार में हो, सर सब फार्मूला लगा दिया तो सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई रोशनी नहीं। अब यही तो जीवन है, जब जितनी रात गहरी होगी, जितनी रात अंधेरी होगी, समझो सवेरा के तुम उतने करीब आ रहे हो, इस भाव से तो लगो। बच्चा लगता है उस भाव से, कहता है सर सवाल तो बन। तो बच्चों शॉर्ट टर्म का प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम आप अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन अगर 4 बातों का ध्यान रखिएगा और 1 साल अगर आप अभ्यास करिएगा, आने वाला कल आप ही का होगा, इसका मैं दावे करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, दैनिक भास्कर को खासकर मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने तमाम बच्चों के पेरेंट्स से जोड़ने का
मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आनंद जी। तहे दिल से हम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका इस बढ़िया आंसर देने के लिए, आपने हर क्वेश्चन को, जैसे आपने शुरुआत की कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का आपने जवाब एक ही सूत्र में बांध के दे दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कुछ सवाल बाबा सर के लिए आ रहे हैं, मैं वो लेना चाहूंगा, एक या दो सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं, बस लास्ट के कुछ मिनट। तो प्रो चांसलर सर, बच्चे पूछ रहे हैं कि हाउ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज वर्किंग ऑन द रिसर्च, पेटेंट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अगर आप कुछ बता पाए। देखिए बेटा, यस सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है ये, जैसे मैंने पहले कहा है, ये फोकस है बच्चों के एस्पिरेशंस पे और न्यू एज यूनिवर्सिटी है। तो रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये हमारा विजन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका अर्थ ये है कि हम रिसर्च पे, इनोवेशन पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरा जोर देते हैं और फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को हम किसी प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, रिसर्च के बारे में उनको बताते हैं और रिसर्च करवाते हैं। शायद ये भारत का केवल एकमात्र विश्वविद्यालय है जो अंडर ग्रेजुएट जर्नल ऑफ रिसर्च निकालता है। वी पब्लिश ए जर्नल ऑफ अंडर ग्रेजुएट रिसर्च इन विच वी ओनली पब्लिश द राइटिंग्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये अंडर ग्रेजुएट बच्चों को उत्साहित करने के लिए है। तो अगर मैं बात करूं पेटेंट्स की, तो पेटेंट्स के लिए अलग से एक विभाग है एंड यूनिवर्सिटी ने, जैसे अभी बताया गया है, 900 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। पिछले साल भारत की सर्वोच्च जो है प्राथमिकता वाली यूनिवर्सिटी बनी है, पहला स्थान मिला है पेटेंट फाइल करने में, और इसमें IIT से भी आगे, TCS और विप्रो वगैरह से भी आगे रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जबकि इन्होंने 357 पेटेंट फाइल किए थे एक साल में। तो इसके अलावा हमारे पास TBI है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बच्चों को सिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो व्यवसाय करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी हम सुविधा देते हैं। फ्रॉम आइडिया टू एंटरप्राइज के लिए हमारे पास पूरी की पूरी सुविधा है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अगर पब्लिकेशंस की बात करें तो बहुत सारी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। अगर रिसर्च ग्रांट्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 43 करोड़ रुपए के ग्रांट्स हमारे पास हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो 12B स्टेटस मिला हुआ है, जिसका अर्थ है कि कोई भी विद्यार्थी गवर्नमेंट से किसी प्रकार की भी ग्रांट ले सकता है, कोई अध्यापक भी ग्रांट ले सकता है। तो हमारा जो पूरे का पूरा फोकस है, जो हमारा ध्यान केंद्रित है, वो इन्हीं चीजों की तरफ है। और जो बच्चे बाद में पढ़ते हैं, हमारे पास BSc वगैरह करते हैं, तो उनको हम 5 प्रोजेक्ट तक कराते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ताकि आपको अपने हाथों से काम करने की आदत पड़े। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का 350 से ज्यादा उद्योगों के साथ टाई अप है और हमारे पास 37 उद्योगों द्वारा स्थापित लैब्स हैं यहाँ पे, वर्कशॉप्स एंड लैब, जहाँ पे आप विप्रो है, माइक्रोसॉफ्ट से शुरू कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की लैब है हमारे पास, IBM की लैब है, HP की लैब है, विप्रो की लैब है, उसके अलावा रेड हैट की, जैसे आपको बताया गया, वो लैब है, होंडा की लैब है, हुंडई की लैब है, तो मिंद्रा एंड मिंद्रा की लैब है, यू नेम एनी कंपनी एंड वी हैव ए लैब हियर ऑन द कैंपस। तो उस सब का लाभ ये है कि बच्चों को हम शुरू से ही रिसर्च में इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो भी आपकी 2 चीजें, जो आपके गुण हैं, आपकी गुणवत्ता है, आपके जो पोटेंशियल है, उसको पूरा बाहर लगाया जाए, और उसके साथ साथ जो भविष्य के लिए आपको टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, जो चीजें आपको आनी चाहिए, वो भी सिखाई जाए। तो इसी बात के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो जानी जाती है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे आशा है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for keep showering the pearls of wisdom onto our attendees, and we are extremely fortunate to listen to such kind answers from you. So, dear audience, with this, we have come to an end of this wonderful, interactive, insightful webinar today. And I thank all the attendees for joining this webinar, for being a wonderful audience, for keep posting all your questions and answers. And with these words, I take this moment to thank again our chief guest, Shri Anand Kumar ji,
for accepting our invitation to deliver this webinar, rather a wonderful webinar, and sharing the success stories of those students with the entire country. So we are deeply indebted to you for this generous time you have given to steer our attendance in the right direction. And we earnestly look forward to having your presence in our campus post-COVID in future events. I owe my gratitude to the entire organizing team of Dainik Bhaskar for successfully organizing this webinar. Cracking JEE examination requires strong determination, and that again reminds me of a very, very famous quote, Kak cheshta bako dhyanam swan nidrat thavche, albahari grehtyagi vidyarthi panch lakshanam. So 5 traits as highlighted by Anandji also. Kak cheshta, efforts like that of a crow, concentration that of a crane, sleep that like of a dog, you are always alert of the opportunities and come out of your comfort zone. That's what literally means Alpahari Grehtyagi. We sincerely thank Shri Anand Kumar ji for sharing his words of wisdom. Thank you, Dr. Baba, our Honorable Pro Chancellor, sir, for always guiding us. So all the best to all the students. Stay safe, keep learning. Goodbye. Thank you. Thank you, Anand ji, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप. बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.